پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گلیوں میں گٹر کا پانی جمع۔ کراچی میں بارش اور عید کو کئی روز گزر گئے لیکن صفائی کا کام نہ کیا جا سکا۔ شہر کراچی کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ تعفن پھیلنے سے شہریوں میں بیماریاں پھیلنے لگی۔ بربادی کی ساری ذمہ داری میئر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، تو بھائی ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یونائیٹڈ نیشن میں جائیں؟ کراچی کے کچرے پر سیاستدانوں میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا کراچی کے مسائل حل کرانے کے لیے اقوام متحدہ جائیں؟ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا سوال۔ آرمی چیف سے مسائل حل کرانے کی اپیل۔ شہر کی تباہی کے ذمہ دار وسیم اختر ہیں، نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا مطالبہ۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ کراچی کی صورتحال پر ایک دوسرے کو نشانہ بنانے والے ایک ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں، عوام کی بے بسی پر منہ چڑھاتے ہیں۔ ٹی وی کیمرے پر الگ اور آف کیم کچھ اور نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے الزامات پر میئر کراچی وسیم اختر سیخ پا۔ سابق سٹی ناظم پر کراچی کے فنڈز کھانے کا الزام لگا دیا۔ کہا مصطفیٰ کمال نے میدانوں پر قبضے کیے اور چائنا کٹنگ کی، بدتمیزی کے سوا انہیں کچھ نہیں آتا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں وقت زیادہ لگ سکتا ہے مگر کچرا اٹھا کر دکھائیں گے۔ وسیم اختر نے وفاق سے رقم کے بجائے عوام سے ٹیکس نہ دینے کا کہا۔ لگتا ہے میئر صاحب تحریک انصاف کے ایجنڈے پر ہیں۔ وزیر اطلاع سعید غنی کی تنقید۔ کہا علی زیدی بھی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، بارش ہوگی تو پانی بھی جمع ہوگا۔ کراچی میں حکومت کچرا اٹھانے میں ناکام۔ لیاقت آباد میں اسکول کے بچوں نے صفائی کا بیڑا اٹھا لیا۔ علاقے میں ننھے بچے صفائی ستھرائی میں مصروف۔ یہاں کوئی صفائی نہیں کرواتا، یہاں اتنی گندگی ہوتی ہے، یہاں ہمارے اسکول کا یہ پورا کچرا پڑا ہوا ہے۔ شدید تعفن اٹھ رہا تھا، کوئی نہ کوئی آگ لگا کے چلا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اس آگ میں سے اور کچرے میں سے نکل کے یہاں سے آ سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ کراچی میں مقیم کشمیری برادری سے ملاقات کرنے اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت۔ کشمیر ڈیرینہ پیچیدہ اور حل طلب مسئلہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ کہتے ہیں معاملے پر پاک بھارت سربراہان سے رابطے میں ہیں، آئندہ ہفتے فرانس میں نریندر مودی سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ آج نیوز سے گفتگو میں کہا بھارتی آبی جہریت سب کے سامنے ہے، اب ثالث کی زیادہ ضرورت ہے۔ ناروے کے ہم منصب سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ ڈینش ہم منصب کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان آج بھی بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ بند ہے، کرفیو ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع بارہمولہ میں نام نہاد سرچ آپریشن، فائرنگ سے ایک کشمیری شہید، 70ویں روزی بدستور کرفیو، ہزاروں کشمیری گرفتار، جیلیں کم پڑ گئیں، 30 افراد بنارس جیل منتقل۔ چین کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو خراج تحسین۔ پاکستان کے آرمی چیف غیر معمولی لیڈر ہیں۔ پاک چین تعلقات میں جنرل قمر باجوہ کا کردار مثالی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا پاکستان کے استحکام کے لیے پر امید ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ پاکستان، 5 ستمبر پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پولیو کیسز میں اضافے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشویش، مہم مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت۔ ادارے آگاہی کے لیے بھی اقدامات کریں۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، پاکستان میں بڑھتے پولیو کیسز پر اظہار تشویش، احساس پروگرام کے لیے ڈیلیوری یونٹ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلاب، 1,09,000 کیوسیک پانی کا ریلا، 12 دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ جلال پور، پیر بالا اور دریائے جہلم کے کنارے وارننگ جاری۔ کوٹری بیراج پر سیلاب، متعدد دیہات ڈوب گئے۔
बारिश से दरियाए चनाब में तुग़यानी दर्जनों देहात मुतासिर, लोग नकल मकानी पर मजबूर, मवेशी हलाक होने लगे, सरकार की तरफ से कोई इक़दाम नहीं, मुतासिरीन की दुहाई। आज तक ना कोई नुमाइंदा कोई जानू बनया, ना हुकूमती नुमाइंदा कोई, ना गुजारिश है कोई साढ़े हाल ते रहम करें, साढ़े डंगर हैं तो वो मरदे पैन। साड़ियां फसलां खराब हो गई हैं, साढ़े पशु भी पे भुख तस्त मरदे न, बच्चे भी मरदे न, और की करिए कहीं। बारिश के बाद बदीन के कई इलाके ज़ेरे आब, खुसूसी बच्चों के स्कूल से 12 रोज गुजरने के बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका, तालीम मुतासिर, माजूर असातिज़ा को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब, 10 नई इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। अभी कौमी टीम की कोचिंग के लिए दरख्वास्त नहीं दी, प्री सीजन कैंप के कमांडेंट मिसबाहुल हक की मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने गवर्नर को कराची में मुकीम कश्मीरी बरादरी से मुलाकात करने और कश्मीर के मसले को उजागर करने की हिदायत की है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद बात करेंगे और जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा कि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और वज़ीर आज़म की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं? जी, इसमें एक तो मसला कश्मीर के हवाले से सिंध में और कराची में जो सरगर्मियां हैं और जो इस इशू को उजागर करना है, उस पर मुशावरत हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सिंध में मुकीम जो कश्मीरी बरादरी है उनसे कंसल्टेशन की जाए और उनको साथ लेकर चला जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने 31 अगस्त को उमरकोट और सरपारकर का दौरा करना है, जहाँ उन्होंने एक जलसे में खिताब भी करना है और एक मंदिर का विजिट करना है। इस हवाले से भी बातचीत हुई है, क्योंकि इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में कम्युनिटी जो अक़लीती बरादरी है उसके साथ किस तरह से रवादारी का मुजाहरा किया जाता है। इसके अलावा सितंबर के आखिर में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका कराची में इफ्ताह होना है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है और ये तय किया गया है कि जो वो उनकी क्या तारीखें होंगी और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरह से उजागर किया जाएगा। तो ये 3-4 जो हैं अहम एजेंडा आइटम थे जिन पर आज गवर्नर सिंध और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। जी अच्छा, ठीक है तारिक, ये भी बताएगा कि क्लीन कराची मुहिम पर अभी काम जारी है। अली जैदी साहब जो है उनको एक टास्क दिया गया है, इस पर क्या गुफ्तगू हुई है डिटेल? इसके हवाले से भी बड़ी डिटेल से बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये जो क्लीन कराची मुहिम है उसको सराहा गया है और उन्होंने कहा है कि इसको जारी रखा जाए और उसकी ये सरगर्मियां, इसकी रफ्तार तेज की जाए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो भी हेल्प कर सकी उनको बताया जाए, ताकि फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी और फेडरल गवर्नमेंट की जो हमायत है उनको वो क्लीन कराची मुहिम को मुहैया की जा सके। अच्छा, ये भी फरमाइएगा तारिक के गुफ्तगू कश्मीरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से की गई है। कश्मीरी बड़ी तादाद में कराची में बसते हैं और वहाँ की इलेक्शन पर भी असरअंदाज होते हैं जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, तो क्या इसका कोई सियासी पहलू भी है? नहीं, सियासी पहलू तो इसलिए नहीं है कि इसका कराची आज़ाद कश्मीर में तो 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं। इसका खालिस्तान ताल्लुक जो है जो इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जो मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया और जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर काज को पूरी दुनिया में उजागर कर रहा है। तो आज की इस मुलाकात का ताल्लुक कश्मीर काज के हवाले से था और जो पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी अखलाकी और जो सफारी मदद कर रहा है उस हवाले से सियासी लिहाज से इलेक्शन के हवाले से या कोई पॉलिटिकल जो उसमें कोई उसका लिंक नहीं था आज की मुलाकात का। बहुत शुक्रिया आपका तारिक चौधरी, हमें इस बारे में अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे शहर कायद की। जी आपको बताएं, शहर कायद जिसका हाल बेहाल है, सड़कों पर कचरा, मोहल्लों में खड़ा पानी और उबलते गटर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इलाका कोई भी हो, मंजर सिर्फ एक ही है, गंदगी और गंदगी। नया गली में गंदगी, बीमार हो बीमार, बच्चे घर में बीमार पड़ गए। कोई है जो इस बेबस खातून का दर्द समझ सके? मेयर कराची, वजीर बल्दियात या वजीर आला सिंध साहब, आप
कोई है? कराची को ओन करने वालों, पता भी है बारिश और ईद को गुजरे कितने रोज बीत गए। ये गोधरा का इलाका है, कभी इस जगह का दौरा किया? इन लोगों की तकलीफ का आपको अंदाजा है? मुतादिद कंप्लेन जा चुकी यूसी में, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और अभी आप देखें ये इस माहौल में बच्चे कैसे स्कूल आएँ और यहाँ से कैसे निकल के जाएँ। कोई किस्म की कोई ना सफाई है, ना कोई सुथराई है, ना कोई यहाँ कोई बड़ा आके कोई यहाँ देखता है। मस्जिद में कोई नहीं जा सकता, इतने परेशान है। ये चीख-तिमाएं आपसे उधार नहीं मांग रही, सिर्फ आपको आपका काम याद दिला रही हैं। अपने बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए चिल्ला रही हैं। खुदारा बस करो ये रोना धोना। इख्तियारात की खींचातानी में कहीं ये नन्हे बच्चे किसी उबलते गटर में जिंदगी ना गवा बैठें। अहले इख्तिदार, ये सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरा कराची, हाँ पूरा कराची इसी हाल में है और तलाश कर रहा है कि कोई तो भूला भटका यहाँ भी आएगा, इस इलाके का मसला भी हल कराएगा। कराची के मसाइल कौन हल करेगा? अहले इख्तिदार तो इख्तियारात की जंग में मसरूफ हैं, साथ बैठकर हंसते हैं और कैमरे के सामने आते हैं, इल्जामात लगाने लग जाते हैं। ये अहले इख्तिदार तब्दीली के दावेदार हंस रहे हैं बेबस अवाम के हाल पर, कराची की सूरत हाल पर। ये साथ साथ हैं घूमने के लिए, फोटो सेशन के लिए, लेकिन जब बात हो काम की तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम करते हैं। मेरे ख्याल में कराची की तारीख में केएमसी का इतना नाकाम मेयर कभी नहीं आया था। आपने अपने 3 साल इक़्तिदार में कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया। इख्तियारात का रोना रोते हैं। क्या मजाक बनाया हुआ है आपने कराची को? टैक्सेस तो ले रहे हैं। मैं कराची के लोगों को कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अगर ये चाहे तो सब हो सकता है, क्योंकि इख्तियारात की कुंजी इन्हीं के पास है। एक साथ बैठें, हंसने के लिए नहीं, काम के लिए। बस अब जरूरत सिर्फ एक बात की है कि शहर साफ करने से पहले नीयत साफ कर लें। अब बात करते हैं कराची के कचरे पर छिड़ी सियासतदानों की जंग की। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची की तबाही के जिम्मेदार मेयर कराची हैं, उनका एहतसाब किया जाए, उनका नाम ECL में डाला जाए। उन्होंने आर्मी चीफ से कराची के मसाइल जंगी बुनियादों पर हल करने की दरख्वास्त की है। वजीर आजम से कह चुका, कोई तवज्जो नहीं है। वजीर आला से कह चुका, कोई तवज्जो नहीं है। बदबख्त मेयर है वो, उस बदकार से बात करना ही बेकार है। वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए, मेयर के टेन्योर में ही चला जाएगा। मैं वजीर आजम से अब रिक्वेस्ट नहीं करता, जनरल बाजवा साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, आप खुदा के वास्ते कराची वालों के लिए एक दौरा करें। आप बुलाएंगे तो शायद ये सब लोग आ जाएंगे। फिर वजीर आजम को बुलाइए, फिर वजीर आला को बुलाइए, फिर मेयर को बुलाइए, फिर गवर्नर को बुलाइए और कमरा बंद करके बैठ जाएं। और खुदा के वास्ते जब वहां से वापस निकले तो कराची के लिए एक मरबूत निजाम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके निकले कि किसके ऊपर जिम्मेदारी है। एक कहता है मेरा काम नहीं है, दूसरा कहता है मेरा काम नहीं है, तीसरा कहता है मेरा काम नहीं है। ना वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी ले रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है, ना सिटी गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है। तो भाई हम किसके पास जाएं? हम यूनाइटेड नेशन में जाएं? ये कराची के लोग मर रहे हैं अभी इन जिम्मेदारियों के लिए। क्या यूनाइटेड नेशन जाएं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जाएं? खुदा के कराची वालों पर रहम करें। कराची कैसे साफ होगा? मेयर कराची ने हाथ झाड़ दिए, कहते हैं बेख्तियार हूं, कुछ नहीं कर सकता। सिंध गवर्नमेंट का काम है, 10 साल से है सिंध गवर्नमेंट। मेरे पास सीवेज की अथॉरिटी नहीं है, सीवेज ठीक करने का पावर्स नहीं है, पानी के पावर्स नहीं है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के पावर्स नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट के पास है। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया। CM साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं सफाई के, ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं के पास है, पानी भी उन्हीं के पास है और सीवेज भी उन्हीं के पास है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची की सफाई का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन जबान पर शिकवा आज भी इख्तियारात के ना होने का है। एक्चुअली तो मैंने ये शुरू ही किया था क्योंकि मेयर साहब को मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने कहा आप लिख के दें, उन्होंने मुझे लेटर लिख दिया, उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर डिक्लेयर कर दी कि कराची में तो हालात ये हैं। और हमें पता था, और शहरी का बादशाह तो मेयर होता है ना, मतलब कंट्रोल, लेकिन
आफ्टर ये जो उन्होंने लोकल बॉडीज लॉ इनका है उसमें उन्होंने डीएमसीज बना दिए, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट इनके पास है नहीं, मेयर के पास, वो सिंध हुकूमत लेके बैठी है। मैंने कल तस्वीर ट्वीट की है जी, अभी 100 गाड़ियां खड़ी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की के पास, सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट के पास, वो क्यों नहीं रोड के ऊपर काम कर रहे? मैंने 5 चीजें इनसे दरखास्त की, कोई रिसोर्स नहीं मांगा मैंने इनसे, इंफॉर्मेशन मांगी है। अहले इख्तिदार तो सफाई के बजाय लफ्जी जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सफाई का बीड़ा बच्चों ने उठा लिया। लियाकताबाद में स्कूल के बच्चे कचरा साफ करने निकल पड़े और मेयर कराची को भी सफाई की दावत देने लगे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे जुनैद जावेद। वसीम अंकल, हमारे स्कूल के बाद बहुत कचरा है, आप साफ करवा दें। बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे, मैं बीमार हो गया हूँ। नारे लगाते और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते ये है निजी स्कूल के तलबा, जिनका शिकवा है कि इंतजामिया लियाकताबाद पर तवज्जो नहीं देती। मेरे हाथ में पेन होना चाहिए, किताबें होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं ये बेलचा लेके खड़ा हूँ, यहाँ कराची की सफाई कर रहा हूँ, यहाँ कोई सफाई नहीं करवाता, यहाँ इतनी गंदगी होती है, यहाँ हमारे स्कूल का ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है। लियाकताबाद से डाक खाना सिंधी होटल तक सड़क पर जगह जगह कचरा पड़ा है। बदबू और ताफुन ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। यहाँ में से शदीद ताफुन उठ रहा था, कोई ना कोई आग लगा के चला जाता है। आप ये समझते हैं कि बच्चे इस आग में से और कचरे में से निकल के यहाँ से आ सकते हैं या जा सकते हैं? जो कचरा थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है, ये तमाम इस इलाके के बच्चों ने खुद पीछे किया। बारिश के बाद जिला वस्ती की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और इंतजामिया अब तक कचरा साफ नहीं कर सकी। जुनैद जावेद, आज न्यूज, कराची। और अब जिक्र मकबूजा वादी पर आलमी राब्तों का। अमरीका ने एक बार